So first of all, I'm really sorry. We are doing Chai Pe Charcha on Zoom. So there was a comment also in one of the group कि like चाय भी खुद से ही लानी पड़ेगी. Don't worry. Let the situation get normal. I will offer you tea, coffee with some snacks also. Okay, that is not a concern. But our concern is like here we are preparing for UPSC. That's it. But what is important here, how to manage the thing. Okay, there is no golden path for UPSC preparation, that is clear. But with experience we come to know, we find like some students they are not on a right track. Then we can give you a suggestion so that you can be on right track. There is no golden path, but there is a wrong path, wrong track or right track. So we have to be on right track. And it's like discussion. ऐसा नहीं कि it is not one way. That's why we are conducting this session on Zoom. First, I will discuss some of the things with you. After that, you have to participate. It has to be both way. If you find you are facing any other problem, and if I feel I have solution for that, I can suggest you something, I can recommend you something, so we will work on that. So that what we can do, we can bring our preparation on the right track. So the purpose of this Chai Pe Charcha is to have our preparation on right track. There was a dilemma like we are conducting Chai Pe Charcha on Zoom. There like it should be only workshop. But earlier we have done promotion with the name of Chai Pe Charcha. So many students, around 350 students, they have registered for this Chai Pe Charcha. So that's why we are not using some other name. Let it be चाय फिर कभी पी लेंगे, आज चर्चा कर लेते हैं. And charcha in the sense in a fruitful manner, so that I feel if you are giving 30 minutes 1 hour today, it should help you to save 100 hours, minimum 100 hours in your preparation. तो मेरा ये पर्पस है कि आज जो भी मैं चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो उससे से कम आपके मिनिमम 100 आवर ऑफ योर प्रिपरेशन आई वांट टू से. So now here, what is the problem student they have in their preparation is they don't have a structured study plan. Without the proper study plan, they are preparing. And even in earlier discussion also I have discussed student what they do patchwork. Just to overcome their guilt feeling. Ki like they are preparing for UPSC, they pick up Lakshmikant, they read for 4 or 5 days, then they get demoralized or they don't have any, like they feel monotonous. ठीक है, ये जो word है ना monotony and this thing, these people are not that self motivated. तो आपको self motivated होना पड़ेगा. You have to complete a task. If you start some task, you have to complete whatever the situation may be. Like if we are conducting any batch, we have to finish it. Whatever the situation may be, we have to finish it. तो वो हमारा कंसर्न है कि अगर हमने कोई टास्क लिया तो वो करना ही करना है. चाय पे चर्चा इवेंट हमने प्लान की थी तो की हमने, भले ही 2 वीक लेट हो गए, बट वी हैव टू डू इट. वी हैव टू डू दिस डिस्कशन. So whatever you plan, if you plan to complete Lakshmikant, you make a target of 20 days. If you are not able to finish in 20 days, you have to do in 25 days, 30 days, but you have to do. You can check your Lakshmikant starting few chapter you have done multiple reading, whereas the last chapter you have not read even once. So it is not a structured study plan. ये होता है unstructured study plan, where what you do just to overcome your guilt feeling, you keep yourself 10 hours busy. आप सिर्फ अपने आप को 10 घंटा प्रिपरेशन में बिजी रख रहे हो इफ यू डोंट हैव ए स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन ए स्ट्रक्चर्ड वे. सेकंड थिंग इज आई टेल यू, यू मेक इट ए रूल एवरी मंथ you have to do evaluation of your preparation also by doing MCQs, by writing means answer writing also. नहीं तो आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाएगा. आपका माइंड कहेगा कि हाँ 1 महीने में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली. पढ़ने से कुछ नहीं होगा. लाइक हियर बिफोर रीडिंग द लक्ष्मीकांत, इफ योर स्कोर इज 40 in polity, आफ्टर डूइंग 1 month हार्ड वर्क, योर स्कोर हैज टू इम्प्रूव.
it has to be 80, 90 or more than that. That is very important. And I give an idea for a structured study plan. Okay? I just give you 2 examples and you have to focus on that strategy. And if I'm wrong, you can tell me. I will tell you with logic. See here, the way we are preparing just before prelims, you can see your energy level, you can see your motivation level, you can see your concentration level just before the prelims exam, last 1 month. You have to maintain the same energy level, same concentration, same motivation level for 1 year. अभी जो ये 3-4 महीने है ना प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद से लेके दिसंबर तक के, क्यों आप 1 जनवरी का वेट कर रहे हो कि यू विल टेक रिजोल्यूशन टू स्टडी फॉर 10 आवर, यू विल डू हार्ड वर्क आफ्टर 1st of the January? Many students, they are giving their hard work in this 3-4 month itself, and this month will help you to get the silver medal or gold medal. अगर नीरज चोपड़ा लास्ट के सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिस करेगा ना जेवलिन की, विल नॉट गेट मेडल. वो 4 साल जो है कंटिन्यूअस दे आर डूइंग ए स्ट्रक्चर्ड, like here hard work, or like they are doing their practice. So here try to make a structured study plan to utilize this 3-4 months which are going to be decide whether you are going to clear the prelims, whether you are going to select or not. अगर ये 3-4 महीने आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए ना, you will not get a good rank or you will not get selected even in the prelims also. भीड़ के साथ मत चलो. भीड़ क्या कहती है, जनवरी में हम सीरियस होंगे, अभी एंजॉय कर ले. These are the 3-4 months where you make your structured study plan. If you are facing problem to make a study plan, structured study plan, we can give a half an hour free mentorship session where you can meet our mentor here, where we will help you out how you can proceed with your preparation. In our program, that is mentorship program, we give a structured study plan. In 21 days we complete 1 subject, and I tell you how we complete, and you have to do the same. What you do, you divide your subject for 20 to 25 days, depend on the length of the subject. Okay, उससे क्या होगा ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस सब्जेक्ट का. Like for example, you are doing fundamental right, divide fundamental right for 2 or 3 days because it is a big chapter. So you are doing one part of fundamental right on one of the day. स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं. बट व्हाट इन आवर प्लान, व्हाट वी डू, दैट आई डिस्कस विद यू, दैट वी गिव सिलेबस वेयर यू हैव टू स्टडी दैट सिलेबस, देन वी गिव 25 MCQs इन दैट टॉपिक प्लस 2 मेंस आंसर राइटिंग. मैनी स्टूडेंट दे आर ओनली एट दिस स्टेज, और वो पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ते भी नहीं है. देयर इज ए लेवल फ्रॉम 0 to 10. जो फर्स्ट लेवल पे है, दे आर डूइंग ए कैजुअल रीडिंग. सेकेंड लेवल पे है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे. तीसरे लेवल पे वो 25 MCQ सॉल्व करेंगे. 4th लेवल वाले दे डू मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आल्सो. बट आफ्टर दैट व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट, यू हैव टू मेक ए फनल फॉर द वीक एरियाज. जैसे आपने 25 MCQs लगाए, देन यू विल नॉट गेट 50 मार्क्स और लाइक 62.5 या 50. जीएस के 2-2 नंबर का क्वेश्चन है ना, आई गारंटी यू 50 में से आपका स्कोर 20 आएगा, 25 आएगा, 6 आएगा, नेगेटिव भी आ जाता है कई बार स्टूडेंट्स का. डजंट मैटर व्हाट यू डू, यू मेक ए लिस्ट ऑफ योर वीक एरियाज. व्हाई योर स्कोर इज नॉट 50? व्हाट आर द क्वेश्चन यू हैव नॉट अटेम्प्टेड? व्हाट आर द क्वेश्चन वेयर यू गॉट रॉन्ग आंसर? क्वेश्चन, मेक द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर यू आर डूइंग केयरलेसनेस. देन दिस इज योर 5 or 6 level. Then what you have to do, then you have to revise your weak areas. Don't skip your weak areas, don't leave your weak areas, otherwise your weak area will make you weak in your exam. आपका weak area आपको एग्जाम में weak बना देगा. आपको weak areas को करते जाना है. And with second revision, third revision, we will be at a level of 8 or 9 in your preparation. तो एक structured है. You have to decide topic in a structured way. You have to make a structured study plan. After that, what you have to do, you have to read that with that intention. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. I ask you to read 1 chapter of Lakshmikant. You will read casually. But if I ask you to read 1 chapter of Lakshmikant, then in evening I ask you question, then you will read like this. Your concentration level will be very high. So you have to maintain the same concentration level. Will help you. So here you have to read with full concentration.
आप भले ही 8 घंटा काम कर लो डेली, बट विद फुल कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि सामने सिर्फ किताब है, just to overcome your guilt feeling you are studying. Then what you do MCQs, then you do means answer writing, then you work on your weak areas on daily basis. Then after 20 days when your subject is over, then you give 100 question full and test, and then you make a list of weak area. Student करते ही नहीं है, you have to make list of weak areas, then give 2 more days for polity Lakshmikant or polity entire syllabus. But don't revise entire area, don't keep on revising your strong area again and again. That give you pseudo confidence. हम क्या करते हैं, हमारे strong area को बार बार पढ़ते रहते हैं. You have to work on weak areas. You have to make funnel daily basis. You have to identify your weak areas. On that weak areas you have to work. After completing the subject, you have to give 100 question test where you make a list of weak area, revise only weak areas, don't revise entire Lakshmikant, then give one more test, then quickly one day revise. I guarantee you your preparation level will be next level. Same you have to do for 8 subject: polity, geography, ecology, economics, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ठीक है. some subject take 20 days, some subject will take 15 days, some subject may take 25 days, depend on the length of the syllabus. But अभी से वो काम करो, your mind give a order that in month of May we will cram this thing, we will revise this. No, you have to cram right now, you have to try to remember right now. अगर कोई फैक्चुअल चीजें अब भी उसको याद करने की, उसके निमोनिक बनाने की कोशिश करो, that will help you. This is my first point. Second is notes making. I have seen 90% students, they have problem with the notes making. Okay, either they are not making notes at all or they are making bulky notes. हमारा ये कहावत है, भावला या तो खुजलाए नहीं, खुजलाए तो खून निकाल ले. तो स्टूडेंट्स ऐसा है, या तो नोट्स नहीं बनाते, बनाते तो ऐसे बनाते हैं like here पूरा like they reproduce the Lakshmikant. So what you have to do, you have to see whether you are making notes for prelims or mains or integrated notes. And student, they ask me, sir, kindly help us how to make notes. Then that type of person I never tell. It doesn't mean I don't want to help you out. What I say, you take 1 week time, first you make your notes, then bring these notes to us. Our mentor will help you out, will tell you कि इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है. आप हमसे ज्ञान लेने आ जाएंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं. तो हमारा एक फंडा है, वी जस्ट हेल्प द सीरियस एंड द सिंसियर स्टूडेंट्स. सिर्फ फ्री में ज्ञान नहीं बांटते हम, ठीक है. हम आपको बता देंगे लाइक यू हैव टू मेक नोट्स लाइक दिस 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 दिस, आप करने के नहीं. 100 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं. So with my experience of last 12 year with the students, then I made a rule. आप लोगों ने ही मुझे ये चीजें सिखाई हैं, स्टूडेंट ने ही सिखाई हैं कि भैया टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम उन पे इन्वेस्ट करना है जो सीरियस स्टूडेंट है. तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को सीधा बोलता हूँ, यू मेक योर नोट्स ऑफ 1 week और like some 1 chapter, you bring that note to us, then we will guide you कि उसको बेटर कैसे किया जा सकता है. बिकॉज वी कैन नॉट डिक्टेट यू कि हाउ टू मेक नोट्स. एवरीवन हैव डिफरेंट स्टाइल. वी कैन हेल्प यू आउट टू मेक बेटर नोट्स. हम आपको बेटर नोट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट जस्ट डिक्टेट हाउ टू मेक नोट्स. वो तो फिर अमित गर्ग के नोट्स हो जाएंगे ना, आपके नोट्स नहीं रहेंगे. इज दिस क्लियर? Notes making is important because for mains exam also we have very less time, and for prelims also like we have to make a quick revision in the last month. So notes making is important if you can do that. But how to do that? If you want to check, what you can do, you make your notes,
You take a half an hour free mentorship session, call on the reception, then our mentor, we will give you a slot, then we will check and we will help you out and we will brief you how to make a good notes. Third very important thing which I have noticed, even in our mentorship batch also, in my CSET batch also, I have seen this is the major problem or major disease student they have. ये एक तरह की बीमारी है, एग्जाम फोबिया. They don't attempt MCQs. They keep on studying. After making 4 revision or still they say, sir, I have not read adequate, I have not read properly, I have to read again. भाई कब तक पढ़ोगे? यू रीड, अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी तो मार्क्स इंप्रूव होते हैं. यू हैव टू लर्न बाय डूइंग प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एज वेल. एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज आल्सो मस्ट. मेंस आंसर राइटिंग इज मस्ट. अब मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा इन माई सीसेट क्लास और माई मेंटरशिप स्टूडेंट्स. आई अगेन एंड अगेन टेल, इफ योर स्कोर इज 0 देन ऑल्सो इट डजंट मैटर. If your score is negative, doesn't matter, but you keep on attempting your MCQs, you keep on writing your mains answer writing, you have to do it. जब तक नहीं करोगे, how you will learn it? तो make it a rule, whenever you are doing MCQs practice, in our plan daily we give 25 MCQs, where student, they don't, like every week I interact with the student one to one, I make call to the students, I interact. And we have the performance track. हमने एक ट्रैक सिस्टम बना रखा है. We have the tracking system, very good tracking system like. Okay, तो क्या करता हूँ, वो ट्रैकिंग सिस्टम मेरे पास पूरा रिपोर्ट आता है उनका डेली बेसिस का, कि इन्होंने इतने एमसीक्यूज में इतने अटेम्प्ट किए, इतने इनके मार्क्स बन रहे हैं. आंसर राइटिंग में दिस इज द ट्रैक सिस्टम. तो आई हैव दैट ट्रैक सिस्टम विद मी एंड आई कॉल देम एंड आई फाउंड आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 1 or 2 स्टूडेंट दे हैव नॉट गिवन एनी ऑफ द टेस्ट. ऐसे हैं, मतलब पैसे एक्स्ट्रा उन पे पैसे पे कर देते हैं बट उसका बेनिफिट नहीं उठाते. दे आर नॉट गिविंग द टेस्ट एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज यू विल नॉट गेट रिजल्ट. तो आई आस्क देम गिव टेस्ट. अगर स्कोर 0 भी है देन इट डजंट मैटर, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. डोंट हैव ए फोबिया ऑफ हैविंग लो स्कोर. ठीक है. And even for mains answer writing also, student they expect, they see the toppers copy available in the market and they try to match with their answer and we are not able to match and then they stop writing the answer. उनका अगर पहला आंसर देख लोगे ना टॉपर्स का, आप देखोगे क्या हगा है उन्होंने भी. कोई भी पहला आंसर अच्छा नहीं लिखता. If you can see their copy available in the market, that is the refined answer writing after a hard work of 2-3 years. 2 से 3 साल के बाद वो आंसर रिफाइन हुए हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू प्ले टेबल टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग, एनी अदर गेम, साइकिलिंग? ठीक है, साइकिलिंग करते हो पहली बार में कोई बिरला ही चला पाता है, हर कोई गिरता है. टेबल टेनिस में लाइक देयर इज अ डूइंग सर्विस, उसकी भी टेक्निक है. पहली बार में सर्विस ही नहीं कर पाते, 4 दिन लग जाते हैं सर्विस. हाउ टू डू द सर्विस ऑफ द बॉल, हाउ टू सर्व दैट बॉल. इवन इन क्रिकेट ऑल्सो. So here if you are doing your MCQs, if your score is 0 then it doesn't matter, but there is a scope of improvement. You do MCQs, make a list of your weak areas, okay, then you have to work on that weak areas. स्विमिंग में पहले क्या कराते हैं आपको, सिर्फ फ्लोट करना सिखाते हैं ना. फाइन. किसी को बोलना है बोल भी सकते हैं. कर दिया. You can unmute yourself, you can participate. How to manage time in UPSC preparation? अच्छा, आपके चैट में कुछ डाउट आए हुए हैं. जय हिंद सर, यूपीएससी नीड कंसिस्टेंसी. यस,
I know swimming, how we manage time in UPSC preparation. Okay. Okay. So here I tell you time management. First thing is you have to manage yourself first. पहले अपने आप को मैनेज करना सीखे. Okay. After that, what you can do, everyone have a different schedule. Some of you might want to take optional with your GS. Some of you are doing GS plus CSET. Some of you are doing 2 classes. Some of you are doing 1 class. Some of you are not doing any class. So here all of you have a different ideas. So what I can do, you take our number 8826619699. You call on this number. We will give you a half an hour free mentorship session. Those who are in old Rajendra Patel Nagar, if you want offline, you can come in the institute. You can bring your notes, you can show to us. Or those who want on Zoom, so we will give. Those who are not in Delhi, उनका Zoom पे भी ये session दे देंगे. तो according to you, we can tell you how to do your time management. एक स्टूडेंट आया, वो PhD कर रहा था, PhD के साथ साथ UPSC की तैयारी कर रहा है. There are some working women, working person, उनका अलग टाइम मैनेजमेंट है. आई सजेस्ट टू थिंग एट ए टाइम. मैं तो उस इंसान में से हूँ जो 2 चीज़ें एक बार बताऊंगा कि GS प्लस CSET कर लो, GS प्लस ऑप्शनल कर लो. यू कीप योर GS कंटिन्यूस. बट अगर इफ यू आर वेरी वीक इन CSET, तो देन यू हैव टू गिव टाइम टू CSET एज वेल. फिर तो आपको डेली 1 आवर मिनिमम CSET को देना ही पड़ेगा. एवरी वन ऑफ यू हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ योर प्रिपरेशन. See what you can do, 6 hour to GS, 3-4 hour to your optional. ठीक है. फिर ईयर लॉन्ग प्लान भी होता है. What we do, we make a year long plan, monthly plan, weekly plan, daily plan. एक ईयर लॉन्ग प्लान लेके चलते हैं कि ऑप्शनल किस टाइम तक हमें कंप्लीट करना है. मान लो 31 दिसंबर तक वी वांट टू कंप्लीट ऑप्शनल, तो वी डू GS प्लस ऑप्शनल. आफ्टर दैट वी पिक अप CSET इफ यू हैव ऑलरेडी डन योर क्लासेस और यू हैव ए बेसिक आइडिया अबाउट CSET. अगर नहीं है तो CSET थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा. हाउ टू प्रिपेयर CSET फ्रॉम बेसिक. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद NCERT. और अगेन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दे विल गिव द डिटेल. I teach from basic. अगर if you are looking for coaching, otherwise you start with NCERT, then some of the basic book RS Agarwal, or there is a website indiaweeks.com, and then you do PYQ. Sir, I did blunder in this year prelims. Exam was easy. Because of overthinking, I made silly mistake. Even after knowing topic ask, I managed to qualify CSET, but GS pulled back. So for that, I tell you consistency with your answer, right? With your prelims practice. Yes, in our mentorship program, what we do, we divided preparation in 4 phase. ठीक है. अभी तो we do integrated prelims का मेंस, फिर कुछ मेंस के स्पेसिफिक गवर्नेंस वाला पार्ट, then totally prelims 4 month पूरा prelims को dedicated, then means we make a year plan and daily basis. And like we can say, I started like program in month of June. तो पहला बैच हमने जून में स्टार्ट किया. जिसने जून में स्टार्ट किया उनके 2 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी. एंड आई आस्क्ड देम, मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ. मैं CSET का भी फीडबैक लेता हूँ स्टूडेंट से और मेंटरशिप का भी लेता हूँ. बिकॉज व्हाट आई नीड सेटिस्फैक्शन. ठीक है. अगर मेरे यहाँ स्टूडेंट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन देयर इज नो पर्पस टू रन एनी ऑफ द प्रोग्राम. तो आई नीड सेटिस्फैक्शन. मुझे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन चाहिए
मॉनेटरी तो थोड़ी बहुत नीड होती है, मॉनेटरी उसके बियॉन्ड तो दैट इज ग्रीड, ठीक है, बट वी नीड ए सेटिस्फेक्शन कि सामने वाला स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं है. एवरी वीक आई आस्क वेदर दे आर सेटिस्फाइड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम और नॉट. They are the students, they have given me a feedback, sir we never prepared geography like here like this time. पहले कभी उस तरह से हमने geography पढ़ा ही नहीं था. And some of them like still not comfortable in geography, but they told sir everything is clear, these are the still weak areas, I will work. मैंने बोला चलो geography को what I suggest out of 8 subject 4 subject has to be very good where you have to score more than 120 and other subject you have to score 100 plus. I asked them that you can keep geography in this range. बोला sir I will try to keep it in 120 plus range and I'm really happy with their performance. तो क्या है कि चीजें ना डेली बेसिस वर्क होती है एंड इन ए स्ट्रक्चर्ड वे. आपको स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, सिर्फ अपनी गिल्ट फीलिंग दूर करने के लिए नहीं पढ़ना कि हमने सिर्फ अपने आप को 10 घंटे बिजी रख लिया, हाँ घर वालों के पैसे लग रहे हैं तो इसलिए हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं. गौरव ने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 70, 82, 84. देखो सी इफ यू डिस्कस विद मी आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हियर पोस्ट कोविड. पहले मैं स्टूडेंट से इतना इंटरेक्ट नहीं होता था बिकॉज आई यूज्ड टू टीच सीसेट, पढ़ाता था निकलता था. बट नाउ हियर पोस्ट कोविड व्हाट हैपन, आई एम इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर 15 or 20 minutes. Then what I found, many students they are failing in prelims again and again. That is not the issue. The issue is they are studying for 10 hours. So then I found there is a problem with their strategy, with their preparation, with their attitude about the preparation. Attitude about the preparation, like they just try to overcome their guilt feeling. वो अपने आप को 10 घंटा बिजी रख रहे हैं but they are not able to handle the pressure which UPSC want to give you. यूपीएससी आपको प्रेशर देगी और वो लेना भी पड़ेगा. आई गिव सम एक्स्ट्रा पॉइंट. विच सोर्स टू कवर. वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोचिंग नोट्स फ्रॉम whatever coaching you have chosen for your GS, for your optional, that is your first priority. ठीक है, don't throw your coaching notes in dustbin. You make multiple revision of your coaching notes so that you can observe or you can digest each and everything in coaching notes. Yes, coaching notes are not sufficient but important. Coaching notes will help you from 20% to 40%. But it has to, you have to by heart this. You have to cram this. You have to remember this thing. If I'm covering anything in my CSET classes, you have to cover it up. फिर क्या होगा? Then you have to fill your gap with some standard books, which we recommend to the students. First, we have a conversation with you. जैसे अगर आप इकोलॉजी के लिए you prefer Shankar IS, okay. If any one of you prefer PMF IS, okay. And if still we find there is a gap, then we suggest. Because there are variation in the study material, so first we will have a conversation with you. Accordingly, we try to help you out to fill the gap. Then the toppers notes to fill the gap. These are the three things we have to refer. But ये सेल्फ स्टडी वाले भी तो मार्केट से जेरोक्स उठाते हैं कि नहीं उठाते? रिया, टेल मी, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, माइट बी हैव परचेज एनी कोचिंग नोट्स फ्रॉम द मार्केट. आपने जेरोक्स शॉप से नोट्स उठाए तो होंगे ना? तो उसको आप मल्टीपल रीडिंग करो ना. यू हैव टू मेक वन सोर्स विच हैज टू बी एट योर सेंटर. एक ऐसा सोर्स होना चाहिए विच इज कॉल्ड मास्टर सोर्स. मैडम भी बोल सकते हो, मास्टर बोल लो, मास्टर सोर्स, मेन सोर्स. फॉर पॉलिटी, इफ यू आर नॉट रेफरिंग एनी कोचिंग मटेरियल, सो लक्ष्मीकांत in that case. Yes, case of you can start CSET classes if your basic is not clear and if you are looking for coaching, okay, you can do. Economically there are many things available in the market. Yes, Ramesh Singh है, संजीव वर्मा सर की भी बुक है, but सब में कुछ ना कुछ गैप है. तो you can have an interaction with our mentor here. We will try to help you to fill the gap.
हर जगह ना कुछ गैप रहेगा. इवन लक्ष्मीकांत इज नॉट 100% थिंग. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत भी 100% नहीं है, वहां पे भी गैप होंगे. वी विल हेल्प यू आउट टू फिल दैट गैप. वो गैप कहाँ से फिल होते हैं? वो फिल होते हैं सिलेबस को अच्छे से देख के और टॉपर्स मटेरियल और सम अदर सोर्स अवेलेबल इन द मार्केट. हाँ जी आशीष, आपका क्या क्वेश्चन है? थोड़ा दोबारा से टाइप कर दीजिए प्लीज. Sir, many of us are preparing for state pieces with UPSC, then how to manage? It depend when your state is conducting prelims exam or mains exam. वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कब एग्जाम कंडक्ट कर रहा है. इफ इट इज अलाइन विद यूपीएससी देन इट इज नो प्रॉब्लम. मान लो मई में आपका यूपीएससी है, उससे एक महीना पहले या एक महीना बाद आपका स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है, एंड नियर टू योर यूपीएससी मेंस यू हैव स्टेट पीसीएस मेंस. ठीक है, देन देयर इज नो इश्यू. हाँ, अगर ऐसा इश्यू आ रहा है जैसे अब 27 अक्टूबर को है, तो अभी आप स्टेट पीसीएस पे फोकस कर लें. यू वर्क ऑन योर स्टेट पीसीएस, या आप आ जाओ एक बार इंस्टीट्यूट मिल लो मुझसे या मेंटोर से, क्योंकि हर किसी की एक स्पेसिफिक नीड है. अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प यू आउट. If you are planning to have a backup plan state PCS, your first preference will be that state PCS which align with your UPSC timetable. तो पहले उस स्टेट पीसीएस को प्रेफर करना जो यूपीएससी प्रीलिम्स के आसपास प्रीलिम्स कराए, यूपीएससी मेंस के आसपास मेंस कराए. इफ इट इज टोटली अपोजिट, पता चला यूपीएससी का प्रीलिम्स है और आपके स्टेट पीसीएस का मेंस आ रहा है उससे एक हफ्ता पहले, ठीक है, ट्राई टू अवॉइड इफ यू कैन. ज्योग्राफी ऑप्शनल रिसोर्सेस, देयर आर टू मेनी बुक्स. ठीक है, कोचिंग भी काफ़ी सारी हैं. सिद्धार्था, आप क्या क्या पढ़ रहे हो? टेल मी, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए. तो एक काम कर सकता हूँ, जो जो आपके डाउट आ रहे हैं ना उस पर रिलेटेड 5-5 मिनट की वीडियो बना के उस पर अपलोड कर देता हूँ अलग अलग से. एक का ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सोर्सेज है, माजिद हुसैन खुल्लर, यस. अविंदर सिंह, यस, दैट इज गुड. प्लस वन ऑफ द कोचिंग, किसी भी कोचिंग के मोड के साथ कंप्लीट कर लो. हरियाणा पीसीएस यू कैन गिव. इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक you can follow Murnal notes. You can take Vivek Singh book available in the market, Ramesh Singh. ठीक है, देखो केशव, हर स्टेट पीसीएस का अलग, ऐसा नहीं है कि एक अलग अलग टाइम टेबल रहता है. दे इन्फॉर्म प्रायर, वो 2-3 महीना पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी कभी हरियाणा का जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के साथ टाइम टेबल मैच भी कर जाता है. समटाइम्स इट इज टोटली अपोजिट. माय सजेशन इज जो भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी के टाइम टेबल से मैच कर रहा हो दैट इज बेटर. अगर टोटली अपोजिट है उसको फिर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. ओके, चलो अभी मैं 1 मिनट रुको, आप कमेंट मत करें. हाउ टू मेक नोट्स, जनरल टिप्स. आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के लिए फोकस ऑन पीवाईक्यू, मेक नोट्स ऑन की सेक्शन, यूज मैप एंड रेडीमेड इंट्रोडक्शन. आंसर राइटिंग के लिए पीवाईक्यू पे जरूर फोकस करें, ठीक है. और उसमें थीम, वी हेल्प टू मेक थीम, थीम बनाने में हेल्प करते हैं तो वो हेल्प करेगी. पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज एनफ. यहाँ पे कोचिंग मटेरियल इज सफिशिएंट क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं. सोसाइटी में ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, इफेक्ट, सिग्निफिकेंस, चैलेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वे फॉरवर्ड, एड डेटा ऑन ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. हैव डेटा विद यू फॉर आंसर राइटिंग ऑफ सोसाइटी. ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, चैलेंज, वे फॉरवर्ड, बेस्ट प्रैक्टिस, यूज मैप एंड डायग्राम एक्सटेंसिवली. ज्योग्राफी में जितना मैप और डायग्राम का यूज करेंगे दैट इज बेटर. And in other question better to use flow chart. This is about mains answer writing.
पॉलिटी में यू कीप ट्रैक ऑफ एससी जजमेंट, आर्टिकल, फ्लो चार्ट फॉर योर मीन्स वैल्यू एडिशन, जनरल फ्रेमवर्क जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से हेल्प हो जाएगा, गवर्नेंस एंड सोशल यूज गवर्नमेंट स्कीम, एग्जांपल फ्रॉम न्यूज़पेपर, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेलफेयर स्कीम। न्यूज़पेपर में से फॉर मेंस आंसर राइटिंग यू हैव टू एक्सट्रैक्ट सम पॉइंट व्हिच विल रियली हेल्प यू आउट। इकोनॉमी including agriculture, data from PIB, newspaper, significance, impact, pros, con, government scheme, way forward, add fact, flowchart, diagram. I will share this PDF with you on our official Telegram channel. ठीक है, ठीक है, IS सेतु ऑफिशियल, IS सेतु ऑफिशियल पे we will share. साइंस एंड टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, किसी भी टेक्नोलॉजी पे जो भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, कीप ट्रैक ऑफ दैट, चैलेंजेस, इंप्रूवमेंट, कंक्लूजन, ऐड डेटा एंड बेस्ट प्रैक्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, यूज केस स्टडीज, गुड प्रैक्टिस एंड मैप। डिजास्टर मैनेजमेंट, स्कोप इन इंडिया, इफेक्ट, चैलेंज, NDMA गाइडलाइन, बेस्ट प्रैक्टिस, गवर्नमेंट स्कीम, यूज मैप टू शो डिजास्टर प्रोन एरिया। मैप का यूज करेंगे, दैट गिव वैल्यू एडिशन for your disaster management questions. Next in environment and ecology, focus on theme mentioned in the syllabus and PYQ. For policies like EIA, discuss issues and way forward, make notes on current environment policies. International relation, focus on internal relation with neighbor and international bodies. ये PYQ का एनालिसिस करेंगे, that you get a idea. Introduction, mutual importance, challenge, issues, government step, conclusion. Okay, so here I can see your comment, everyone have like some individual issues. Today तो I will not be available, ठीक है, आज तो फिर मैं चला जाऊंगा, कल 15th अगस्त है, 16th अगस्त you can come, I have class at 5 o'clock, तो what you can do, morning you can come 12 o'clock, 12 to 1, ठीक है। See, I tell you students, देखो, if I give a general idea, that is not going to help you out. मैं जनरल आइडिया आपको दे दूंगा, उससे आपको उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। आप एक नंबर नोट कर लें, 8826661969, एक बार कविता को बुलाना, ठीक है। दिस इज अवर रिसेप्शन नंबर। इफ यू आर नियर बाय राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इवन मुखर्जी नगर, because if you can come here, you bring your notes, bring your some of the answer, then our mentor can help you in better way. Face to face is better if it is possible, but if you are not in Delhi, like you are out of Delhi, so what you can do, you can call on this number, we will give a half an hour slot, आपसे slot ठीक है। तो ये नंबर है हमारा इंस्टीट्यूट का, आप कॉल करें, ठीक है। यू वांट हाफ एन आवर स्लॉट वेयर वी हेल्प यू इन ए डिटेल्ड मैनर। अभी मैं 2 मिनट में बता भी दूंगा ना, इट विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। वो काम नहीं करना यार, सिर्फ कि मैंने ज्ञान दिया, आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाला। वी गो स्लो एंड स्टडी विद ए बेटर वे। कम बच्चों को गाइड करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। 2000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए सेमिनार नहीं करना, हमें रिजल्ट चाहिए। 20 लोग आएंगे, आधा घंटे का मेंटरशिप सेशन लेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वो ही चाहिए। डेली नहीं करते हम, हर महीने इवेंट करते हैं। हर महीने में हम वी विल सी हाउ मच टाइम वी हैव, वी गिव दैट हाफ एन आवर मेंटरशिप सेशन, और वही हम हेल्प करते हैं। एंड इवन इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम देयर इज ए क्लियर इंस्ट्रक्शन टू आवर स्टाफ। जो हमारा DGMP प्रोग्राम है उसमें 100 बच्चे के बाद 101 को एडमिशन नहीं देना है, एंड एवरी बैच 10 स्टूडेंट। क्लियर इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज माई एम फॉर दिस ईयर, 100 बच्चों का प्रीलिम्स निकालना ही निकालना।
या ये होगा कि 100 में से 90 बच्चे प्रिपेयर्ड एनफ रहेंगे, 10 बच्चों को पहले ही बता दूंगा, अगर जो नहीं कर पाएंगे काम उनको पहले ही बता दूंगा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, बेटर स्किप द अटेम्प्ट, डोंट गिव द अटेम्प्ट। बट लेकिन ये नहीं होगा, डायलेमा नहीं होगा, मैं आपको हर वीक इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आप स्लो चल रहे हो, आपका काम बेकार चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, लाइक दैट। अभी टाइम भी है, आफ्टर नवंबर दिसंबर इट विल बी डिफिकल्ट टू कॉप अप ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव टाइम राइट नाउ, वी हैव टू यूटिलाइज दिस मंथ। अभी जैसे आधा महीना अगस्त का बचा, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिस 3.5 मंथ, और दिसंबर भी, कुछ लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं, दिस 4.5 month very crucial to qualify prelims, to qualify this exam। ये 4.5 month जो है ये आपको रिजल्ट देने वाले हैं, these are not lean period मत लो इनको, this is high investment period और productive period। यही टाइम है जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट विल गिव ए फ्रूट। अभी पौधा लगाने का टाइम अच्छे से, मतलब okay, we can do a hard work of 8 to 10 hour on daily basis in a structured way, that is the idea। तो whatever query you have, मैंने आपके देख लिए, काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे क्वेरीज हैं, ओके आप इस नंबर पर कॉल करें, आधे घंटे का सेशंस लें, आए डिस्कस करें डिटेल में, अपने नोट्स भी दिखाएं, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आपके माइंड में है कि आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, तो वी हैव ए प्रोग्राम बैच इज रियली गुड, डेली गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका बैच फॉर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट पहले ज्वाइन कर लेते हैं, वी गिव इट, जैसे अगर कोई अभी ज्वाइन करता है तो 10 to 15 डेज का वी गिव इट टास्क, लाइक टू डू एनालिसिस ऑफ PYQ। द मोमेंट स्टूडेंट दे ज्वाइन, वी स्टार्ट देयर वर्क फ्रॉम दैट डे ओनली, तभी से हम उनका काम स्टार्ट कर देते हैं। देन वी हेल्प यू आउट हाउ यू कैन एनालाइज PYQ, वी गिव यू सम टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट, देन वी गिव डेली टास्क, डेली MCQs, डेली आंसर राइटिंग, एंड आवर मेंटर हिमसेल्फ इवेलुएट योर आंसर विद इन 48 आवर। आपके आंसर स्टूडेंट नहीं, मेंटर इवेलुएट करते हैं, एंड यू हैव इंटरेक्शन विद मेंटर, देयर इज अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, एवरी वीक आई कॉल दिस स्टूडेंट, वी हैव ए परफॉर्मेंस ट्रैक। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये 4.5 month जो है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस 4.5 month, डोंट वेस्ट, इधर उधर मत वेस्ट करो इस टाइम को, दीज आर गोइंग टू डिसाइड योर फेट इन UPSC। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस, वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। DGMP जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, गोइंग टू स्टार्ट मैप्स लर्निंग प्रोग्राम, मैप आई विल स्टार्ट इन मंथ ऑफ जनवरी। How to analyze PYQ of prelims and mains effectively, you have to make themes, theme wise करना है। We have given one PDF in our CSET batch student, उसके बाद भी हम देंगे, prelims के लिए भी देंगे लेटर, तो जहाँ पे PYQ का theme wise we make analysis। आप देखो ना उसमें किस टॉपिक की कितनी वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Topic wise you have to do analysis of PYQ for prelims as well as mains, topic wise, so that you come to know the weightage of topic। प्रैक्टिस, अब आप बोलोगे कि क्वांट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, प्रैक्टिस से किया जाएगा विद सम लर्निंग कहाँ से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, या कोई प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। क्वांट के लिए बेसिक यू कैन फॉलो RS अग्रवाल, बेसिक के लिए यू कैन फॉलो RS अग्रवाल, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के लिए यू कैन फॉलो M Taira, ठीक है, और एक्स्ट्रा लेवल के लिए UPSC PYQ एंड आवर बुकलेट, जो हम बुकलेट और हमारे टेस्ट देते हैं IAS सेतु की टेस्ट सीरीज, दैट इज अ लेटेस्ट पैटर्न, बिल्कुल UPSC से मैच करते की कोशिश करते हैं हम, एंड आवर बुकलेट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस विच वी विल रिलीज इन मंथ ऑफ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में। हर महीने लगभग एक आधी बुकलेट हम रिलीज करते हैं।
आशीष कुमार वीकली मैगजीन से भी हो सकता है, बट यू हैव टू डू दैट इन ए गुड मैनर। ऐसा नहीं कि वहां पे भी काम चोरी करें, एक ही जगह काम चोरी अलाउड तो नहीं है, बट ओके चल सकता है। लेकिन आप वीकली मैगजीन भी अच्छे से ना पढ़ो, उस पर एमसीक्यूज ना प्रैक्टिस करो, उसका थीम, उसकी वे, उसका बैकग्राउंड नहीं पता हो न्यूज का, तो देन कहीं ना कहीं फंसोगे ना आप। फाइन। तो लाइक लेट मी कंक्लूड what I have discussed with you. I told you make a structured study plan. अभी 4 से 5 महीने अच्छे से यूज करना है। 8 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में 120 प्लस टारगेट करना है, बाकी में 100 प्लस, ठीक है। And you have to make a funnel. Daily basis you have to work on weak area. Once you complete one subject, then give full length test, then work on weak area. Take 2-3 days. Don't keep on revising your strong area again and again. That is a problem. फिर है नोट्स मेकिंग। आप अपनी नोट्स मेकिंग हमें दिखाएंगे, वी विल हेल्प यू। थर्ड है एग्जाम फोबिया। अगर आपका 0 स्कोर भी आ रहा, डोंट वरी, बट यू हैव टू गिव एमसीक्यूज, यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। नहीं घबराना है आपने, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग 0 से नहीं डरना है, बट मेहनत करते रहना, ठीक है। देन आई टोल्ड यू 3 sources coaching notes, either you have joined the coaching or you have purchased notes from the Xerox shop, then standard book, then toppers notes. You have to integrate. If there is a gap, you can meet us, we will help you out to fill your gap. Then how to make notes, ठीक है, मैंने आपको हेल्प कर दिया। ये PDF we have share on our telegram group, IS Setu official telegram पे we have already shared this. How to improve comprehension section and reasoning, Rahul, what you have to do, you have to read editorial from your newspaper and try to do precis writing from that. उसको 1/3 में प्रिसाइज करने की कोशिश करो। योर कंप्रीहेंशन एबिलिटी विल इंप्रूव एंड डू PYQ। इंग्लिश के लिए PYQ करें, प्लस अपने एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ें और ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट एडिटोरियल सो दैट यू कवर ईच एंड एवरीथिंग। GS स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगा? यू कैन गिव ए कॉल। सिमरन, आप रिसेप्शन पे कॉल कर लो, तो दे विल नोट डाउन योर नंबर एंड दे विल हेल्प यू आउट विद दैट मेंटरशिप स्लॉट। I'm not in Delhi to meet you in person, I'm in my hometown Andhra Pradesh, so you can call on that number, so it can be arranged on Zoom call. अच्छा, मेरे से बात करनी है तो आप 16th को मेरे से बात कर लेना, रिसेप्शन वाले नंबर पे कॉल कर लेना, दे विल हेल्प यू आउट। ओके, better if you join any mains test series or prelims test series, you follow that structure. उसको स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, दैट विल हेल्प यू आउट। अगर नहीं फॉलो कर पा रहे, देन यू कैन मेक योर ओन स्ट्रक्चर और यू कैन मीट अवर मेंटोर, ठीक है। जिसको मेरे से बात करनी है, आप 16 को कॉल कर लेना, ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आई गिव यू नंबर अगेन, आपको नंबर दे देता हूं दोबारा से, 8826619699, but only the point is try to utilize this 4.5 month in a better way, in a structured way. Don't be scared of MCQs, you have to work hard. Smart work भी है, hard work in right direction. If you are on right track, okay. If you feel you are not in right track, you can take help from us, ठीक है, you can interact with us, we will help you out to have a right track. Thank you students, thank you very much.